Good morning class. Today we are going to study traveling wave analysis. These are the topics which we are going to cover in this unit. So let's start traveling wave analysis. First of all, we should know what is the objective of studying this traveling wave analysis chapter. हम क्यों traveling wave analysis करेंगे ये हम देखेंगे. तो in fault analysis, the objective was to find out the fault current. ठीक है, तो हम fault current calculate करके we were designing the ratings of the circuit breaker. What ratings? Current carrying capacity, breaking capacity, making capacity, ये सब हमें डिसाइड करना था सर्किट ब्रेकर का, इसलिए हम फॉल्ट एनालिसिस कर रहे थे so that the circuit breaker can withstand that much amount of fault current during any fault. Okay. After that we have studied power system stability, in which the objective was to find out the critical clearing time for the circuit breaker, or we can say the operating time for the circuit breaker, so that the fault should be getting cleared within that operating time so as to maintain the transient stability of the system. तो हम stability में critical clearing time which was corresponding to critical clearing angle of the rotor ये find out कर रहे थे, जिससे हम circuit breaker का operating time डिजाइन कर पाए. ठीक है, तो to achieve the stability. Now let's start with traveling wave analysis. So before understanding the objective of studying traveling wave analysis, first let's try to understand what is traveling waves. So in the transient condition, the very high magnitude of voltage and current transient which arises in the system for very short period of time is called traveling waves. तो जब भी कोई transient होगा उस duration में हमारा voltage और current का magnitude जो है वो बहुत ही high हो जाएगा, but बहुत ही short duration of time के लिए, तो उसे हम ट्रैवलिंग वेव्स बोलेंगे. वो सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वेव्स की तरह. उनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, वेव की स्पीड के बराबर होती है. ठीक है, तो द मेन कॉज ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स आर लाइटनिंग, स्विचिंग एंड शॉर्ट सर्किट. तो दीज टू फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाइटनिंग एंड स्विचिंग. They will decide the insulation level, what type of insulation level or what type of protection should be given to the system to protect against lightning and switching surges. ठीक है, तो जब भी कोई lightning strike होगी तो it can damage our system. To protect the line from the lightning, a ground wire is run through the length of the transmission line from the top of the tower. मतलब lightning से protect करने के लिए हम ground wire बहुत ही top of the tower से हम ग्राउंड वायर रन करा देते हैं. ठीक है, तो जब भी कोई लाइटिंग स्ट्राइक होती है वो ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं गिरती है, वो ग्राउंड वायर से ग्राउंड हो जाती है. ठीक है, स्विचिंग क्या है? स्विचिंग जब भी कोई स्विच फॉल्ट के केस में स्विच ओपन या क्लोज होगा तो उस समय ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होंगे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए. तो जब ओपनिंग और स्विचिंग से वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा और लाइटिंग से भी वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा अगर वो ट्रांसमिशन लाइन पे गिर रहा है तो लाइटिंग एंड स्विचिंग डिसाइड द इंसुलेशन लेवल ऑफ द पावर सिस्टम. ठीक है, तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग पावर सिस्टम, द ट्रैवलिंग वेव एनालिसिस. ठीक है, तो स्विचिंग में हम देखेंगे क्या हो रहा है. स्विचिंग जब भी हो रही है सर्किट ब्रेकर की तो वो फॉल्ट में ही होगी. ठीक है, तो जब भी स्विच ओपन या क्लोज हो रहा होगा तो वोल्टेज और करंट सर्ज फ्लो करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में. तो उनका मैग्नीट्यूड इतना हाई होता है कि अगर हमने उसको इंसुलेटर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो उस सर्ज की वजह से हमारा इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा या ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, तो लाइटनिंग डिसाइड कर रहा है इंसुलेशन लेवल, स्विचिंग भी डिसाइड कर रहा है इंसुलेशन लेवल. तो अप टू 300 kV लाइटनिंग इज द फैक्टर विच विल डिसाइड द इंसुलेशन लेवल, एंड अबव 300 kV स्विचिंग विल बी द फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द इंसुलेशन लेवल ऑफ द सिस्टम. तो ये जो हमारी ट्रैवलिंग वेव्स हैं उनका नेचर वेव की तरह होता है. वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है ट्रांसमिशन सिस्टम में. ठीक है, और उनका कैरेक्टरिस्टिक भी वेव की तरह होता है कि अगर कोई भी मीडियम में चेंज होगा तो वो वेव रिफ्लेक्ट होगी, कुछ आगे बढ़ जाएगी, आगे मीडियम में चली जाएगी, तो वो हम आगे देखेंगे अभी. तो इन ट्रांसमिशन लाइन एनर्जी इज ट्रेवर्स्ड इन टू फॉर्म. तो जो ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज सर्ज या करंट सर्ज है वो दो फॉर्म में आगे बढ़ रही है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो इंडक्टर में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कैपेसिटर पे, फिर ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में, देन अगेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. इस तरीके से हमारी जो ट्रैवलिंग वेव्स हैं या वेव वोल्टेज वेव या करंट वेव है वो आगे बढ़ती है. तो अगर कोई भी ओपन सर्किट यहाँ पे अगर मिलेगा उसे
कैपेसिटर के अक्रॉस सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इस कैपेसिटर के अक्रॉस इतना हाई वोल्टेज हो जाएगा ड्यू टू ओपन सर्किट केस। जब भी अगर यहाँ पे मान लीजिए स्विच लगा है या लोड लगा है, वो ओपन हो गया तो यहाँ का वोल्टेज बहुत ही हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो जितने भी कैपेसिटर हैं शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट है सीरीज करंट वो बहुत ही हाई हो जाएगी। इसीलिए शॉर्ट सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो स्विचिंग एक्शन ऑफ ओपनिंग विल डेवलप वोल्टेज ट्रांजिएंट। जब स्विचिंग होगा, जब स्विच ओपन होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, इसलिए वोल्टेज ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होंगे। स्विचिंग एक्शन ऑफ क्लोजिंग विल डेवलप करंट ट्रांजिएंट। जब भी स्विच क्लोज होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट बहुत हाई होगी, तो वो करंट ट्रांजिएंट या करंट सर्ज प्रोड्यूस करेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू वेव इक्वेशन। So we will develop a mathematical model for this wave, which is a voltage, which can be a voltage wave or current wave. So we know that voltage and current are the function of distance and time. जैसे जैसे voltage wave आगे बढ़ेगी तो वो distance के according जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे voltage drop होता जाएगा और time भी पास होता जाएगा। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग भी वोल्टेज वेव कम होती जाएगी और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग भी हमारी वोल्टेज वेव रिड्यूस होती जाएगी। करंट के साथ भी सेम होगा। तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की ओर बढ़ने पे वोल्टेज में चेंज आएगा। सो विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। सो वी एंड आई आर द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये जो हमने सर्किट डायग्राम लिया है, आपने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा था या जो ट्रांसमिशन सिस्टम था उसमें पढ़ा था कि हम ट्रांसमिशन लाइन को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लंप्ड मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोस्ट एक्यूरेट मॉडल कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो हम ट्रांसमिशन लाइन को डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन मान के चलेंगे, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ही पढ़ेंगे, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर विल बी देयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, तो हम इसकी एक स्ट्रिप लेते हैं, स्मॉल स्ट्रिप। ठीक है, ठीक है, तो हम डेल्टा एक्स लेंथ की हम इसमें से एक स्ट्रिप लेंगे, उसको जूम करके देखेंगे तो उसके अंदर सर्किट तो यही होगा, इंडक्टर होगा, रेजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा, फिर कंडक्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो हमने डेल्टा एक्स लेंथ की एक ट्रांसमिशन का पीस लिया, ट्रांसमिशन लाइन का पीस लिया। उसमें हम देख रहे हैं क्या कि आर इज द रेजिस्टेंस पर ओम, एल इज द इंडक्टेंस, sorry, R is the resistance which is in ohm per kilometer, L is the inductor, ठीक है, which is Henry per kilometer, G is the conductance which is mho per kilometer and C is the capacitance which is farad per kilometer। तो ये सब पर किलोमीटर की वैल्यू है। तो हमें डेल्टा एक्स लेंथ की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? R में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा एक्स लेंथ की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। L में अगर डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लेंथ का जो इंडक्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। इस लेंथ का कंडक्टेंस हमें चाहिए तो G में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमें। इस लेंथ का हमें कैपेसिटेंस कितना ये चाहिए तो C जो C है पर यूनिट किलोमीटर पर यूनिट लेंथ का है, उसमें हम डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आगे देखते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू, तो डेल्टा V कैन बी रिटन एज डेल V बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो स्मॉल वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल लेंथ इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कट जाएगा तो फिर स्मॉल वोल्टेज बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज रिसीविंग एंड पे V है, सेंडिंग एंड पे इस साइड पे V प्लस डेल्टा V है। तो हमारा जो ये सीरीज नेटवर्क है इसमें डेल्टा V जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हुआ होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? डेल्टा V। तो इस डेल्टा V को हम कैसे लिख सकते हैं? आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। आई आर इंटू डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल पोर्शन का है, एल इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया? डी वी बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स यहाँ से कट गया। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। सिमिलरली जब हम करंट की इक्वेशन लिखेंगे
इसमें जो करंट जा रही है, डेल्टा आई करंट जा रही है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक कंडक्टेंस में जा रही है, एक कैपेसिटेंस में जा रही है। तो ओम्स लॉ से जब हम इसका लिखेंगे तो V इंटू जी डेल्टा एक्स, और कैपेसिटेंस में जो करंट जा रही है विच विल बी इक्वल टू C इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल V बाई डी टी। तो यहाँ से डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, जी वी प्लस सी डी वी बाई डी टी। ओके, for lossless transmission line we know that resistance and conductance will be zero, so by putting R and G 0 in equation 1 and 2 we will get del V by del X is equal to LdI by dt, del I by del X is equal to CdV by dt. After that we will derivate this equation with respect to distance, with respect to X, and this equation with respect to time. So we will get this d square v by d square is equal to L d square by dx dt, और d square I upon dx dt is equal to C d square v by dt square. तो जब हम 3 और 4 को डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ से इक्वेशन 6 से हम इक्वेशन 5 में कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। डेल्टा ये इसकी वैल्यू हम यहाँ से C डेल स्क्वायर v बाई डी टी स्क्वायर है। तो जब हमने ये पुट की यहाँ पे तो हमें क्या मिला, वेव इक्वेशन मिल गई विच इज डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी इंटू डेल स्क्वायर v बाई डेल टी स्क्वायर। तो इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे तो उसको डेल स्क्वायर v को डेल एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर रखेंगे। तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, उससे जब हम सॉल्व करेंगे CFPI से तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा वोल्टेज वेव का। तो वोल्टेज विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t will be equal to first function which is x minus 1 upon under root LC into t plus second function which is x plus 1 upon under root LC into t। ठीक है, तो this is the general solution of wave equation। तो हम देखेंगे ये वेव इक्वेशन की तरह कैसे है। तो कोई भी वोल्टेज वेव है, इंसिडेंट वेव है, नेट वेव ये है हमारी वोल्टेज वेव, ये दो पार्ट में आगे बढ़ेगी। एक इसका फॉरवर्ड पार्ट होगा जो आगे जाएगा, और एक इसका बैकवर्ड पाथ होगा जो कि रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो वी एक्स टी क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है या नेट इंसिडेंट वेव है जो कि आगे जा रही है। फिर जो फर्स्ट फंक्शन है इसका रिफ्रैक्टेड वेव है। ठीक है, जैसे कि लाइट में पढ़ा था हमने, कोई भी लाइट जब किसी पे इंसिडेंट होती है और मीडियम चेंज होता है तो उस चेंज ऑफ मीडियम की वजह से कुछ लाइट तो आगे चली जाती है विच इज रिफ्रैक्टेड लाइट, और कुछ लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो उसको रिफ्लेक्टेड वेव बोलते हैं। ठीक है, तो जो आगे चली जा रही है, जैसे यहाँ पे वहां पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा था लाइट के केस में, ठीक है, तो मीडियम चेंज हो रहा था। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस चेंज होगा ट्रांसमिशन लाइन का, तो मीडियम चेंज होगा। तो जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी होगी, डिसकंटिन्यूटी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है लाइन का वो चेंज होगा, वहां पे जो वोल्टेज और करंट वेव है कुछ तो आगे चली जाएगी जिसको हम रिफ्रैक्टेड वेव बोलेंगे विच इज फॉरवर्ड कंपोनेंट, और कुछ कंपोनेंट रिटर्न हो जाएगा जिसको हम रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे विच इज बैकवर्ड कंपोनेंट। तो इसको ठीक से समझते हैं हम एक बार। तो लाइक इन लाइट वेव, इफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मीडियम, ठीक है, अगर लाइट जिसमें ट्रेवल कर रही है जिस मीडियम में, वो मीडियम अगर चेंज होता है, मान लीजिए पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 था, तो ड्यू टू चेंज इन मीडियम दैट लाइट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट विल गो इन द सेम मीडियम, तो कुछ लाइट आगे बढ़ जाएगी जिसको हम रिफ्रैक्टेड वेव बोलेंगे, और कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे चली जाएगी, जिसको हम रिफ्लेक्टेड वेव बोलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल नेट इंसिडेंट लाइट थी जो कि ड्यू टू चेंज इन मीडियम कुछ आगे रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ पीछे रिफ्लेक्ट हो गई। तो सिमिलरली इन ट्रांसमिशन लाइन इफ देयर इज अ चेंज इन मीडियम कैसे होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन चेंज हो रही है, कोई डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो उस पॉइंट से जो हमारी इंसिडेंट वोल्टेज और करंट सर्ज है वो कुछ तो आगे चली जाएगी, जिसको हम V2 और I2 से डिनोट करेंगे, और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिसको हम V1 और I1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो आगे बढ़ जाएगी उसको रिफ्रैक्टेड वेव बोलेंगे,
ठीक है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो पीछे चली जा रही है, वो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वोल्टेज और करंट की। ठीक है, सो लेट्स मूव टू ओके वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे जो 1/√LC 1+1/√LC है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको v से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो विच इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाउ वी कैन सी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ L and C। L को अगर हम μ0/2π ln/d/r रख रहे हैं, ठीक है, और C को 2πε0 ln/d/r रख रहे हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर का इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ln/d/r कैंसिल हो जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/√μ0ε0 which is a constant, and if we put the value of μ0 and ε0 we will get 3 × 10⁸ meter second, which is the speed of light. So voltage and current wave travel with the speed of light, this we have seen here. तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, बट केबल में जो हमारा इंसुलेशन है उसका एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, लाइट ऑफ स्पीड इन केबल विल बी, सॉरी लाइट ऑफ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स इन केबल विल बी v = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर्ज इम्पिडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, सर्ज इम्पिडेंस भी हमने पढ़ा है, जानते हैं ZC विल बी इक्वल टू √L/C। हमने हाफ LI स्क्वायर इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर किया था, तो जो हमारा V/I था वो आगे अंडर रूट में चला गया था। ठीक है, तो √L/C आ गया था। तो वही कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी है। तो फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन सर्ज इम्पिडेंस इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे ZC, L और C की वैल्यू रख के और कुछ और भी कांस्टेंट रखने के बाद, तो जो ZC है वो अराउंड 400 ओम आएगा। ठीक है, और अंडरग्राउंड केबल के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो 40 ओम आएगा। ठीक है, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हमें पता है जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो केबल से कम होती है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू केबल से कम होगी तो ऑब्वियस है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है वो ज़्यादा होगा केबल से। ठीक है, तो अगर अंडरग्राउंड केबल में सी कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ रही है तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरल वैल्यूज हैं जो बुक्स में दी हुई हैं। ठीक है, कहीं पे ये 500 ओम दिया होगा और केबल के लिए 50 ओम दिया होगा, बट हम 400 और 40 मान के चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेव एनालिसिस विद डिफरेंट लाइन लोडिंग। ओके, तो हम ट्रैवलिंग वेव एनालिसिस करेंगे। जब भी कोई स्विचिंग होगी तो वोल्टेज और करंट सर्ज प्रोड्यूस होंगे जो कि ट्रैवल करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। और जब भी कोई इम्पिडेंस आएगा, इम्पिडेंस चेंज होगा, ट्रांसमिशन लाइन किसी लोड से कनेक्ट है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का चेंज हो रहा है इम्पिडेंस। पहले कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस था ट्रांसमिशन लाइन में और अब इम्पिडेंस ZL हो गया, विच इज द इम्पिडेंस ऑफ लोड। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आई है ड्यू टू चेंज इन इम्पिडेंस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, वोल्टेज और करंट वेव रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होंगी। तो जो रिफ्लेक्ट हुई हैं दैट विल बी V1I1, और जो आगे चली गई हैं लोड के अंदर दे आर V2 एंड I2 विच इज रिफ्रेक्टेड और फॉरवर्ड कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट वेव। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो इंसिडेंट वेव है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के थ्रू होके जा रही है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V होगा, इंसिडेंट वोल्टेज V, और करंट जो है वो इंसिडेंट करंट I होगा। तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं I = V/ZC। आगे जब बढ़े तो हमारा जो करंट है इसमें जो जा रही है वो रिफ्रैक्टेड करंट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V2 है, तो इससे हमें रिलेशन मिल जाएगा I2 = V2/ZL। ठीक है, तो कुछ करंट जो और वोल्टेज रिफ्लेक्ट हो गई थी वो वापस हमारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से ही जाएगी, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो I1 विल बी इक्वल टू -V1/ZC। तो अकॉर्डिंग टू वेव प्रॉपर्टी जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव। एक्चुअली होना क्या चाहिए, जो हमारी इंसिडेंट वेव है, ये जो इंसिडेंट वेव है दैट शुड बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव प्लस रिफ्रैक्टेड वेव। बट जो हमारी जो रिफ्लेक्ट हो रही है वेव, इसको हमने बुक्स में माइनस साइन के साथ लिया हुआ है।
तो इसकी वजह से जो हमारी इंसिडेंट वेव है विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हुई है वापस आ गई है, वो नेगेटिव साइन के साथ ले रखा है, ठीक है। तो यहां से जो ये रिलेशन आ रहा है दैट विल बी रिफ्रैक्टेड वेव इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसी को मान के चलेंगे, ठीक है। और यहां पे माइनस साइन है रिफ्लेक्टेड के साथ, ठीक है, उसको हमने पहले भी ले लिया है। तो यहां से रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव V2 है वोल्टेज की, और इंसिडेंट वेव V है, और रिफ्लेक्ट जो हो रही है वो V1 है। तो यहां से ये आ गया I2 रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड जो आगे चली गई, I इंसिडेंट वेव है और I1 रिफ्लेक्टेड है। तो इस रिलेशनशिप से हमने वोल्टेज और करंट के लिए ये रिलेशनशिप रख लिया, और इन तीनों रिलेशन से यहां करंट की वैल्यू रख दी। I2 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन ZL, यहां से I विल बी इक्वल टू V अपॉन ZC, फिर यहां से I1 विल बी इक्वल टू माइनस V1 अपॉन ZC, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, हमें जो वोल्टेज और करंट वेव रिफ्रैक्ट हुई है और जो वोल्टेज और करंट वेव रिफ्लेक्ट हुई है उसको हमें इंसिडेंट वेव के फॉर्म में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले V2 फाइंड आउट करते हैं जो आगे चली गई है इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज V। तो टू फाइंड आउट V2 हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन में V की जगह, यहां से V की जगह V2 माइनस V1 रखना पड़ेगा। तो रिप्लेस V1, सॉरी V की जगह नहीं, V1 की जगह V2 माइनस V रखना पड़ेगा, तब सारी वैल्यू V2 और V के टर्म में आ जाएगी। टू फाइंड आउट V2 रिप्लेस V1 इन दिस इक्वेशन बाय V2 माइनस V, ठीक है। तो V2 अपॉन ZL विल बी इक्वल टू V अपॉन ZC माइनस V1 की जगह हमने V2 माइनस V रख दिया इस इक्वेशन से, ठीक है। तो बहुत सिंपल, अभी कुछ रिलेशन आ जाएंगे आप देखेंगे, और इससे बहुत सारे केस भी आगे बनेंगे, तो इसको समझना जरूरी है। तो V2 अपॉन ZL इज इक्वल टू V अपॉन ZC माइनस V2 अपॉन ZC प्लस V अपॉन ZC, यहाँ से ये हो गया, ये कुछ रीअरेंज करेंगे इधर उधर, मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आपको V2 मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज V। तो V2 क्या है, रिफ्रैक्टेड वोल्टेज वेव थी, तो V2 इज द रिफ्रैक्टेड वोल्टेज विच वी हैव कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज V, which is equal to 2ZL upon ZL plus ZC, 2ZL upon ZL plus ZC। देखिए यहां से अभी हम एक कोफिशिएंट भी फाइंड आउट कर देंगे जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो V2 में V से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2ZL upon ZL plus ZC मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बीटा V से डिनोट करेंगे, और ये बीटा V क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन अगर पूछा जाए तो सेम फॉर्मूले से हम V2 अपॉन V करके 2ZL अपॉन ZL प्लस ZC कैलकुलेट करके हम कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं फॉर वोल्टेज। अभी सेम चीज हम रिपीट कर सकते हैं करंट के लिए भी, ठीक है। करंट के लिए जब रिपीट करेंगे तो देखिए सेम चीज या तो रिपीट कर देंगे इस फॉर्मूले से, या जो हमने निकाला था करंट हमें फाइंड आउट करनी है, I2 इज टू V अपॉन ZC, I2 इज टू V अपॉन ZL, ठीक है। तो I2 इज टू V2 अपॉन ZL में हम V2 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहां से देखिए क्या होगा, V अपॉन ZL क्या हो जाएगा, V अपॉन ZL इंटू ZL अपॉन ZL प्लस ZC, ठीक है। हमने क्या किया, V2 की वैल्यू पुट की है यहां से, रिफ्रैक्टेड वोल्टेज की वैल्यू पुट की है रिफ्रैक्टेड करंट में, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2I इंटू ZC अपॉन ZL प्लस ZC। ये I कहां से आया, ये I हमें पता है, दिस इंसिडेंट वेव I इज इक्वल टू इंसिडेंट वोल्टेज V अपॉन ZC। तो V अपॉन ZC की जगह हमने रख दिया है I, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ZL तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे ZC से मल्टीप्लाई किया, ऊपर ZC से मल्टीप्लाई किया, तो V अपॉन ZC विल बिकम I,
और यहाँ एक ZC रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से रिफ्रैक्टेड करंट जो कि लोड में जा रही है, आगे बढ़ रही है, दैट रिफ्रैक्टेड करंट विल बी 2ZC अपॉन ZL प्लस ZC इंटू आई। यहां से अगर हम I2 में I से डिवाइड करेंगे तो हमें कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज वहां रिफ्लेक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज था, ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट है। अभी हमें रिफ्लेक्टेड वोल्टेज V1 फाइंड आउट करनी है और I1 फाइंड आउट करनी है। अभी हमने फाइंड आउट किया है V2 और I2 विच इज रिफ्रैक्टेड वोल्टेज वेव एंड करंट वेव, ठीक है। अभी हमें V1 I1 फाइंड आउट करना है, तो सेम चीज हम रिपीट करेंगे। टू फाइंड आउट V1 रिप्लेस V2 बाई V प्लस V1, ठीक है। तो हम V2 हटा देंगे इस बार और सारी इक्वेशन को V और V1 के टर्म में ले आएंगे। तो रिप्लेस V2 बाई V प्लस V1, व्हाट वी विल गेट। तो इस इक्वेशन में V प्लस V1 पुट किया, सेम चीज आ गई, ठीक है। सेम चीज रिपीट करेंगे। V1 इज इक्वल टू V1 जो हमारा रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव थी वो इंसिडेंट वोल्टेज वेव के टर्म में आ जाएगी, ZL माइनस ZC अपॉन ZL प्लस ZC। और V1 में हम V से जब डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी अल्फा V विच इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। सेम चीज जब करंट के लिए रिपीट करेंगे तो I1 बराबर है माइनस V1 अपॉन ZC। सो बाई पुटिंग एवरीथिंग V अपॉन ZC को हम I रख देंगे, तो I1 अपॉन I जब हम करेंगे तो हम कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ करंट आ जाएगा। तो जब हम V2 और I2 के लिए कर रहे थे और उसमें V से डिवाइड कर रहे थे तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा था वोल्टेज और करंट का। जब हम V1 I1 कर रहे हैं उसमें V और I से डिवाइड कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। जब हम V2 I2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस समय हमें कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड वोल्टेज है। और जब हम V1 I1 फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें V और I से डिवाइड कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है हमें, ठीक है, विच इज अल्फा। तो ये जो आगे चली जा रही है ये हमें बीटा देगी, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है V1 I1 ये हमें अल्फा देगी विच इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। लाइन टर्मिनेटेड बाई इनफाइनाइट इम्पिडेंस, तो ये हम लोग इसमें कुछ नहीं है। जो हमारा पिछले केस में ZL था इसको हम इनफाइनाइट इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे सेम फॉर्म में जो हमारे डिराइव होके आए हैं। उसके बाद हमें ये केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन टर्मिनेटेड बाई इनफाइनाइट इम्पिडेंस। नेक्स्ट हम केस देखेंगे लाइन टर्मिनेटेड बाई जीरो इम्पिडेंस विच विल बी अ शॉर्ट सर्किट केस, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।